नहीं ले पाती। हमने देखा है, दुनिया ने देखा। कॉमर्स मिनिस्ट्री डेलीगेशन तैयार कर रहा था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पीएम को ब्रीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री यूरोप में कह रहे थे कि हम दुनिया का पेट भरेंगे, गेहूं का निर्यात करेंगे, और कुछ ही दिन में आपने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे फैसले ना हो, इसलिए मेरी मांग है। दूसरी बात, मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूं। मेरी सहानुभूति है वित्त मंत्री जी के साथ, क्योंकि जब से वो आई हैं वो मजबूर होकर क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में उन्होंने काम किया है। लेकिन हमें सिनेरियो प्लानिंग करनी चाहिए, भविष्य की प्लानिंग योजना हमें बनानी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, आज मानसून डेफिशिएंसी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में जितनी औसतन बारिश होती थी नहीं हुई। 23% धान की बुआई उत्तर प्रदेश में कम हुई है। क्या वहां के कृषि मंत्री विभाग ने कोई मीटिंग ली है? क्या आपने उनके साथ बैठक ली है? क्या आप उनके साथ बैठक लेंगी? उसका जवाब मैं आपके उत्तर में जानना चाहूंगा। और अंततः जो आम आदमी कहता है उसके पास सारी चीज़ों का समाधान है। मैं बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी ने मुझे कहा कि आप सदन में जा रहे हैं, चर्चा करेंगे, वहां ये समाधान दे दीजिए ना। मैंने पूछा क्या समाधान है? उसने कहा सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, 5 साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर 2-3 महीने में कहीं चुनाव करा दो और आप देखोगे सरकार डीजल, पेट्रोल, बिजली कोई भी भाव बढ़ने नहीं देगी। राइट, धन्यवाद। राइट। इन्होंने कोई राजनीति किया नहीं, सुझाव दिया, आप उसको स्वीकार करेंगे ना करेंगे अलग बात है। ऐसी चर्चा ऐसी होना चाहिए सचमुच में। श्री सुरेश रेड्डी, 2 minutes, Suresh Reddy. Sorry to say it. Yes, sir. Chairman, sir, I do understand your predicament, sir, but at the same time, we are a 7-member party, and my name was on the listed business today, sir. But of course, there was a communication gap between us and the table, which resulted in the name not being there, sir. But nevertheless, sir, I leave it to you, and of course, you have all the inherent powers, sir, for your indulgence, sir. So with deep anguish today, I must say that when the country is going through the period of what they call it the Amrit Kal, it is not prosperity, but it is poverty and the loud cries of the common man which are resonating all across the nation, sir. All very honorable, experienced members across the parties, while speaking, sir, I can sum it up and say the whole summary was cradle to crematorium. From cradle to crematorium, the kind of agony the country and the poor people are facing has very explicitly been described in this house, sir. So all I can add to that is, after the debate, probably, अगर कुछ बचा आदमी के पास, तो उनके विलनामा में कुछ जीएसटी का प्रोविजन अंतिम यात्रा के लिए रखना चाहिए, so that he'll have a nice farewell before leaving this earth, sir. Sir, I mean, my question, sir, is between September 2021 and April 2022, the consumer food price inflation in India has risen from 0.68 to 8.38 year on year, sir. Currently, it stands at 7.1%. The wholesale price index was at a record high, which is the highest in 30 years in May 2022 at 15.9. I will not go for a tedious repetition of how the prices have gone up, sir, but the excuse given needs to be looked into again, sir. When we spoke about the sunflower oil, they said the Ukraine war was the reason. I can say with full confidence, sir, it is not the Ukraine war. Ukraine also had a drought in 2021 also, in 2020. Russia had a export embargo for their essential commodities. But the war started in 22 of February, sir. So you cannot blame the Ukraine war for all the price rise which is happening in our country. And then secondly, sir, when we see the petroleum price, I would not like to go into the full split up of that, but one issue which I'd like to bring to the House is the central taxes and the state taxes which make part of the entire pricing of a liter of petroleum product. In that, there are various taxes from Government of India, central governments, and one such tax which we notice is the agricultural cess, sir. The agricultural cess which says is 2.5 rupees per liter. Now this is being collected for agriculture, infrastructure and development cess, sir.
during the course of the debate, many honorable members have pointed out that there has been a high inflation in Telangana and some other states. I would like to know, through the Honorable Finance Minister in a reply, what is the amount you spent on agriculture infrastructure? In the last 7 years, I haven't seen a single major irrigation project coming up in this country. I haven't seen any major incentives being given to the farmer, but in spite of the fact you've been collecting. For example, in my own state of Telangana, where you say the inflation is high, Telangana, from the most backward region in the country, before it became a state, has become one of the top 5 contributors to the Indian economy in a span of 7 years, sir. How did we have to do this? It could be achieved through the optimum utilization of our river waters, which meant a lot of expenditure had been incurred. Seeing the prosperity on Telangana, which is against the spirit of the federal structure on which the country thrives, they are trying to choke Telangana. You're trying to put curbs on our borrowings. You're trying to put curbs on various limitations. Now, this way, the development of Telangana is one area which would be affected, sir. And I would request the Finance Minister that in the spirit of federalism, do not choke states which are progressing and which are contributing to the country, sir. Thank you, Sir, finally, sir, one last point. Everything was spoken, one about the Russian war, sir, and the other was on the pandemic. But we have to see a lot of mismanagement happened even before the pandemic. It happened during demonetization. The Honorable Finance Minister spoke so highly of Rajya and spoke about what he said in the Lok Sabha, sir. But I would like to quote one last before I close, sir. Rajya has also said the other day in a conference in Raipur that Sri Lanka was an example of what happens when a country's politicians try to deflect a job crisis by targeting minorities. Your failures, your mismanagement should not be taken with pandemic as a reason. So with these words, sir, of course, had a lot, but with due respect to the chair, I thank you, sir. Thank you. Suresh Reddy was former speaker, so he has experience of time management. Dr. K. Lakshman, 5 minutes. Maiden speech, but there is no maiden, as I told you. Honorable Chairman. You have bright future. Sir, at the outset, I would like to thank for giving this chance to speak on the subject price rise. First time in this August parliament. Sir, I hail from Telangana, but I have been given an opportunity to get elected from Uttar Pradesh as a Rajya Sabha. I am really grateful to my leadership, Modi ji and our President Nadda ji, for giving this chance. As a person from Telangana, it is my bounden duty to speak on behalf of Telangana people and to see that the interest of the Telangana and the welfare of the Telangana people to be talked here. And I would like to become the voice of the Telangana people in this August Rajya Sabha, sir. Because I am the first Rajya Sabha member from Telangana by a ruling party, which my party has given this chance. At the same time, I would like to take responsibility to see that how, being a Rajya Sabha member from Uttar Pradesh, how my government, under the leadership of Modi ji and Yogi ji, the double engine Sarkar, working day and night for the development and also the empowerment of downtrodden, weaker sections and poor of the society. Sir, Chairman, sir, in spite of this pandemic situation, our visionary leader, Narendra Modi ji, entire world facing the economic crisis, would be able to retain the inflation and able to control the price rise. So, I've been hearing from my co-parliament from Telangana, is speaking about the price rise. I really fail to understand, and I feel they have no moral right to speak on price rise, because I would like to share some facts how these Telangana people are suffering due to the increase in the price rise. I would like to just take 3 examples, sir, with your due permission. As far as fuel charges are concerned,
the union government reduced twice, not once, reduced twice, and also all the BJP ruled states also reduced the price rise right from 5 rupees to 15 rupees, lessening the burden of the common man to the tune of 20 to 25 rupees. I have seen in Uttar Pradesh for the last 1 year, it's almost 25 rupees to 20 rupees on petrol and diesel. The government has it. This is the concern of the government towards the common and the poor sections. Whereas in Telangana, our Chief Minister, Mr. KCR, proudly says that I will not going to increase a single paisa which the state collects in the name of VAT. I'm sorry, sir, the state government collects on petrol 35% as a VAT and 27% on diesel as a VAT. Altogether from 2014 to up to this 2022, this government has collected not less than 70,000 crores of rupees as a VAT. And unfortunately, the center which collects in the name of excise duty, the 41% share goes to state again. This is the Telangana government concerned towards the poor and the common man. When it comes to the increase of the land values, twice in a month, in a span of 5 months, the government has increased the land values. Not only land values increased up to 50 to 60% to make money out of that, and also they have increased the stamp duty from 6% to 7%. And market value of the land has also increased from 50 to 60%. So apart from this, the public transport, where common man relies on it, 50% of increase on this public common transport system, sir. To the tune of 5,596 crores is a burden. It's a burden on the common man, where this RTC. For information, the government itself is due to the RTC, not less than a tune of 17,202 crores, out of which 12,598 crores are due by this government itself. The government claims to be a surplus budget state, but unfortunately, now it's in the depths of 3.5 lakh crores. And our brother, the students who rely on bus pass, poorer sections and common man, now the bus pass has increased from 160 to 450 per month. This is the... Please, sir, please. Sir, and my friend spoke a lot about this irrigation and concern towards this farmer, sir. Unfortunately, one by name, Kaleshwaram project, it was redesigned. It was a 30,000 crore project, enhanced to 1,20,000 crores. Already they have spent 80,000 crores, but of no use. But due to the recent floods and rains, Lakshman, you have to conclude. You have to conclude. Please. Their motor pumps were merged, and it is learned that hundreds of crores of rupees has to be spent for repair. It will take more than 1 year to get it repaired. This is the vision of our Chief Minister, where the public money, how it is being wasted. Sir, finally, I would like to just compare with the UP model of Telangana. मैं जब भी भ्रमण करता हूँ उत्तर प्रदेश में, मैं जब चुनाव के समय में गया, जो निःशुल्क राशन जो मोदी जी ने 80 करोड़ आबादी को दिया जा रहा है, लगभग 3,50,000 करोड़ खर्चा कर हर महीना 5 किलो, वो हर महीना 5 किलो भी हमारा तेलंगाना सरकार 3 महीने से वो बंद किया, गरीब का पेट भर। हमारा प्रधानमंत्री कोई गरीब भूखा पेट नहीं सोना, इसलिए मोदी जी के अलावा हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने ये चावल के अलावा गेहूं, दाल, चीनी, तेल हर महीना 1 किलो नमक के साथ हर महीना 2 बार दिया जाता है। देश के अंदर किसी भी प्रदेश में इस तरह दिया ना जा रहा है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश हमारे जो डबल इंजन सरकार है, हमारे जो भी बीजेपी शासित राज्य है, हमारे गरीब और वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, किसान के हित लिए काम करने वाला है और गरीब का मिस्र मोदी जी। इसलिए आज तेलंगाना के लोग आज दबाव गए, आज बदलाव चाह रहे। जरूर हम तेलंगाना के आबादी को विश्वास दिलाते हैं, हम जो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएंगे, इसके लिए काम करेंगे। रेफरेंस प्लीज, टेबल ऑफिस Secretary to take note that reference to Chief Minister by name will not go on record. That has been the practice. Only other things, of course. Telangana Chief Minister's name should not go on record. Now, Sri Ajit Kumar Guyan, 2 minutes. Almost all the
Other parties are completed. Thank We you, have 2 minutes. Honorable Chairman, sir. As I get a very short time, I will raise few points only. But I think touching of sub points is enough, as the government already knows everything and tragically enough hides everything. Okay, conclude. Sir, from flood to price hike, the people of my state, Assam, are suffering like hell, and the government goes with the same rhetoric. We cannot control price hike for these reasons. If you can give neither job nor food or relief from calamities like floods, why there is a government at all? This is my question. Sir, I cannot understand why the pathetic financial condition of the country and its people's financial penury is directly proportionate to the meteoric rise of a selected few. The most recent data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India, show that rate of inflation in India in the month of July 2022 has been 7%, while that of food inflation has 7.75%. If we look commodity-wise, we will find that the rate of inflation has been as high as 17% in case of vegetables, 9% for oils, 8.6% for fish and meats, 10.39% for fuel and light, and 9.5% clothing and footwear. Sir, it should also be noted that the rate of inflation in the country has remained over 6% for quite some time now. For instance, if we consider the period since January 2020, the average rate of inflation in India has been 6.17% for the last 30 months. Sir, why the data of various reputed international organizations on India's development index differ from our government's data? This is my question. Now we are manipulating even statistics of our development, to whom we are lying actually. Sir, what is important here is to realize that in demand-constrained condition, particularly the condition arising out of the pandemic, inflation is only caused by increasing costs. A series of hikes in fuel prices, including petrol products and LPGs, have only aggravated the situation. Right, Ajit Kumar ji. Sir, 1 minute. The present inflation is thus triggered by faulty administrative decisions, but to control inflation, the government needs to have sufficient handles. We are falling, sir. The question is whether the government has sufficient handles to contain inflation. We are falling, sir. I just want to remind this House that if we do not do anything, it will be an endless backward Thank journey. you, Ajit. Thank you, sir. Honorable members, this short duration discussion is normally 2.5 hours. Because of the importance of the subject, on the request of members, I extended by another 1.5 hours, making it 4 hours. Now 4 hours are over. Now there are still some speakers left, and the minister has to give response to all these issues raised. So the House is extended to sit beyond 6 o'clock till we complete the business today, the other speakers, and also the response by the Honorable Minister. Please. Shri Sushil Kumar Modi. सभापति महोदय, जीएसटी को लेकर सदन में काफ़ी चर्चा हुई है। यद्यपि सरकार ने बार-बार कहा है। You have 10 minutes time. Keep that in mind. Okay. Sir, the government has reiterated. Sir, the government has reiterated repeatedly that it was a unanimous decision in the fitment committee, in the group of ministers, and even in GST council. But some of my members from opposition, they're saying, no, we raised
we oppose this increase of GST. तो मैं केवल एक ही सवाल जानना चाहता हूं कि अगर आपने विरोध किया तो वोटिंग क्यों नहीं कराई? जीएसटी काउंसिल में वोटिंग का प्रावधान है। अगर आपने विरोध किया और आपकी बात को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या वोटिंग के लिए फोर्स किया, कि आपने वोटिंग करवाई, और नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई? सच्चाई तो यह है उपसभापति महोदय कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक राज्य के वित्त मंत्री ने यहाँ तक कहा कि कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए। और सभापति महोदय, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अगर आपका विरोध है तो आपने नोटिफाई क्यों किया? ऑन 18th of July, each and every state, including Congress ruled or TMC or CPM, they have notified this increase of GST. तो आपने बंगाल में क्यों नोटिफाई किया? आप रोक देते कि हम नोटिफाई नहीं करेंगे। आपने केरल में क्यों किया? आपने तमिलनाडु में क्यों किया? तो आपने टैक्स इंक्रीज को नोटिफाई किया। इट मीन्स यू आर इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ GST रेट टैक्स, और अब आप कह रहे हैं कि हमने तो साथ नहीं दिया था। तो सभापति महोदय, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपको आज भी लगता है, मैं तो ये कहूँगा, केरल के मुख्यमंत्री का बयान देखा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है तो घोषणा करें, जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं कि इस इंक्रीज को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। हिम्मत है तो ऐलान करें। लेकिन सभापति महोदय, सबों ने लागू कर दिया और यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सभापति महोदय, और मैं तो आग्रह करूँगा, अगर आपको इतनी चिंता है गरीबों की तो ऐलान कीजिए कि रिइंबर्स करेंगे। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिइंबर्समेंट। They will not levy any tax from the consumer, but they will reimburse the tax to the dealer, to the shopkeepers. आप अनाउंस कर दीजिए कि रिइंबर्स करेंगे सभापति महोदय। और सभापति महोदय, और अभी भी समय है, आप अगली GST काउंसिल की बैठक में विड्रॉ करने का प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके पहले भी GST काउंसिल की बैठक में 300 से ज़्यादा चीज़ों पर जो टैक्स इंक्रीज हुआ उसको वापस लिया गया। तो आप ऐलान कीजिए कि अगली GST काउंसिल की बैठक में और हम इस निर्णय को वापस लेंगे। सती महोदय, ये GST काउंसिल का फैसला है, ये केंद्र सरकार का फैसला नहीं है। केंद्र सरकार वहाँ मौजूद थी, केंद्र सरकार उपस्थित थी, लेकिन सर्वसम्मति से, चाहे वो कांग्रेस रूल हो चाहे TMC हो, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। और सती महोदय, एक और आश्चर्य की बात है कि एक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, GST को स्क्रैप कर देना चाहिए। हम अगर हमारी सरकार बनी तो नया GST लाएंगे। वो कहते हैं कि सिंगल रेट होना चाहिए। तो आप अगले मीटिंग के प्रस्ताव लाइए। आज तक आपने कभी प्रस्ताव लाया कि सिंगल रेट होगा? क्या चप्पल पर भी वही टैक्स लगेगा और मर्सिडीज कार पर भी क्या वही टैक्स लगेगा? अगर हिम्मत है तो अगली GST काउंसिल की बैठक में ब्रिंग अ रिजोल्यूशन that there will be no four slab of taxes, but there will be only one slab of taxes. लेकिन सती महोदय, वहाँ तो सर्वसम्मति से आपने निर्णय कर दिया और यहाँ पर आप विरोध कर रहे हैं। इनको सती महोदय विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और सती महोदय, जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, ये आयातित महंगाई है। इसे ये देश की अर्थव्यवस्था के मिसमैनेजमेंट के कारण पैदा हुई महंगाई नहीं है, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। ये जो इन्फ्लेशन है, इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इज अ कांग्रेस लिगेसी। मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से, अगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर 85% क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट करना पड़ रहा तो क्या आप इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं? क्या अगर खाद्य तेल, क्या अगर पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, अगर हमको आज 60% एडिबल ऑयल अगर इंपोर्ट करना पड़ता है तो आपने क्या प्रयास किया कि इंपोर्ट न करना पड़े? सती महोदय, 58% नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं। 75 साल में आपने क्या प्रयास किया कि इंपोर्ट नहीं करना पड़े? सती महोदय, फर्टिलाइज़र 60% फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट करते हैं। और आज जो सारी महंगाई है ये 3F के कारण है, फ्यूल, फूड एंड फर्टिलाइज़र। ये तीनों, फ्यूल, फूड, फर्टिलाइज़र,
और ये तीनों चीज़ें जो हम विश्व के बाजार से आयात करते हैं। और सरस्वती महोदय 3R, रशिया, रेट एंड रेसेशन, ये रशिया, रेट और रिसेशन, ये तीन बड़े कारण हैं जिसके कारण सरस्वती महोदय और ये स्थिति यहाँ पर और पैदा हो रही है। सरस्वती महोदय, मेरे पूर्व के लोगों ने विस्तार से जिक्र किया है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन कितना है, 400%, 400%, 2% था, दैट इज इंक्रीज टू 9.1%। सरस्वती महोदय, कनाडा में कितना है, 8.1%, यूके में कितना इन्फ्लेशन है, 9.4, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज टू 11% इन द कमिंग डेज। सरस्वती महोदय, और पूरे दुनिया में विरोध हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर आंदोलन हो रहा है। सरस्वती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा, इंग्लैंड के अंदर रेलवे की स्ट्राइक हो गई वेजेस को बढ़ाने के लिए, जिम्बाब्वे में नर्सेज ने स्ट्राइक कर दिया, बेल्जियम के अंदर वर्कर्स की स्ट्राइक हुई, साउथ कोरिया, स्पेन, पेरू, अफगानिस्तान, येमेन, म्यांमार, हैती। सरस्वती महोदय, ब्रुसेल्स, लेबनान, इराक, केन्या, तुनिशिया, बुर्किना फासो, दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में महंगाई के विरोध में जनता सड़कों पर आ गई। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का कमाल है कि उन्होंने महंगाई को नियंत्रित करके रखा। आपके प्रयास के बावजूद कोई सड़कों पर नहीं आया, कहीं कोई प्रदर्शन ही पॉलिटिकल पार्टीज के प्रदर्शन के अलावा कहीं जनता सड़कों पर नहीं आई, क्योंकि जनता को मालूम है कि ये महंगाई यूक्रेन के कारण है। जनता को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर फर्टिलाइजर का दाम नहीं बढ़ा होता तो भारत में फर्टिलाइजर का दाम नहीं बढ़ा होता। जनता को मालूम है सरस्वती महोदय कि अगर सरस्वती महोदय, जनता को ये मालूम है कि फ्यूल से लेकर बाकी चीजों का, आपने 10 मिनट समय दिया था ना? नहीं, अभी पार्टी ने कम कर दिया, 7 मिनट दिया। अरे तो आपने बोला कहा कि कम कर दिया, आपने कहा 10 मिनट, तो मैं 10 मिनट बोल रहा था। सरस्वती महोदय, इसलिए मैं चेयरमैन साहब ने 10 मिनट कहा था। तो सरस्वती महोदय, मैं केवल आपसे यही कहना चाहूँगा सरस्वती महोदय कि ये जो महंगाई है, वो चाहे फर्टिलाइज़र की महंगाई हो, चाहे नहीं, फर्टिलाइज़र का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा, लेकिन हमने भारत के किसानों को बढ़ने नहीं दिया, सब्सिडी दिया। हमने 62,000 करोड़, हमने सरस्वती महोदय, हमने 62,000 करोड़ की सब्सिडी दी है, नई सब्सिडी। और अब सरकार ने ऐलान किया कि 2025 के बाद हम यूरिया को इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये हिम्मत है भारत सरकार की कि 2025 के बाद हम यूरिया का इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे 40,000 करोड़ की बचत होगी। सरस्वती महोदय, हम जो यूरिया का इंपोर्ट नहीं करेंगे। और सरस्वती महोदय, हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, मैं सदन को बताना चाहूँगा। ये जो यूरिया है उसका प्राइस है 2,450 और हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, 2,183, यानी 2,450 रुपये की यूरिया केवल 266 रुपीज़ में हम किसानों को दे रहे हैं। डीएपी का दाम है 4,073 और हम दे रहे हैं केवल 1,350 रुपये में। एनपीके का दाम है 3,291 और हम दे रहे हैं केवल 1,470 में। हम एमओपी का दाम 2,654 रुपीज़ है, हम दे रहे सरस्वती महोदय केवल 1,700 रुपये का दे रहे हैं। सरस्वती महोदय, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते सरस्वती महोदय, तो आज भारत में जो महंगाई की दर 7% है, मैं दावा करता हूं ये 20% पर पहुंच गई होती है, 20% पर पहुंच गई होती। सरस्वती महोदय, समय नहीं है, मेरे पूर्व के लोगों ने आंकड़ा दिया है। यूपीए के समय में क्या हुआ, इन्फ्लेशन का रेट क्या था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय भारत के अंदर इन्फ्लेशन का रेट क्या था, टेम्पर टेंट्रम के समय इन्फ्लेशन का रेट क्या था, और हम तो आज 7.01 पर है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ सरस्वती महोदय, अब यूक्रेन से सनफ्लावर का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है, अब यूक्रेन से गेहूं का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है। और ठीक है, घनश्याम तिवारी जी ने, ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान और अमेरिका की बिना परवाह किए, सैंक्शन की बिना परवाह किए, और रूस से केवल कच्चा तेल नहीं तो रूस से फर्टिलाइजर, रूस से कच्चा तेल और रूस से अन्य चीजों को मंगाकर और सस्ते दाम पर मंगाकर गरीबों को देने का काम किया है। सरस्वती महोदय, नहीं, आपका 10 मिनट भी हो चुका। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ।
इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने प्रोएक्टिव होकर और महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, प्रोएक्टिव पॉलिसीज बनाई हैं और आगे आने वाले दिनों में भी हम महंगाई को 7% से आगे नहीं जाने देंगे। सचिन महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राधा मोहन दास जी। डॉक्टर राधा मोहन दास, डॉक्टर राधा मोहन दास, आई हैव कॉल्ड अप स्पीकर ऑलरेडी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी बातें 4 बिंदुओं पर आपके सामने। अच्छा, अंडर व्हाट रूल? Under 261, sir. Yes, what is the rule? Sir, this is defamatory to Maharashtra when honorable member was saying that nobody opposed anything in the GST Council when Maharashtra has written an open letter saying that this GST No, he is not talking about open letter. He is talking about council. How can he say, council में council का बात कर रहे हैं, लेटर की बात नहीं कर रहे हैं। लेटर में या हाउस में जिक्र करने की बात नहीं कर रहे हैं। GST Council was Maharashtra has written point of order is ruled out. It doesn't come under any rule. बोले नहीं माननीय उपसभापति महोदय, महंगाई की इस महत्वपूर्ण बहस पर मैं 4 बिंदुओं पर अपनी बातें रखूंगा। क्या यह महंगाई पहली बार भारत में आई है? क्या भारत के भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा राज्यों के बीच में महंगाई एक सी है? क्या भारत का विकास इससे प्रभावित हुआ है? और महंगाई को लेकर ये तथाकथित नेता ज़्यादा समझदार हैं या इस देश की जनता ज़्यादा समझदार है? महोदय, 75 साल के शासन में पहले 27 साल कांग्रेस का शासन था और महंगाई की दर 13% से लेकर के 28% तक थी। फिर बीच में जनता पार्टी का शासन आया, महंगाई की दर खींच करके जनता पार्टी ने 2.52% ला दिया। फिर कांग्रेस की शासन आ गई और तकरीबन 15 साल कांग्रेस का सरकार रहा और महंगाई फिर बढ़ करके 10% से लेकर के 11.35% हो गई। उसके बाद फिर अटल जी की सरकार आई और अटल जी की सरकार में महंगाई 99 में 4.67, 2000 में 4.01, 2001 में 3.75, 2002 में 4.3, 2004 में 3.77, यानी फिर भाजपा की सरकार आते मान महंगाई घट गई। फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बन करके हम लोगों के बीच में आए। 2009 में 10.88% महंगाई थी, 2010 में 11.99% महंगाई थी, 2011 में 8.91% महंगाई थी, 2012 में 9.48% महंगाई थी, 2013 में 10.02% महंगाई थी। ये एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के दौरान इस देश की महंगाई थी। और फिर आए चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री, जिन पर आज पूरा देश गर्व करता है। कबीरदास ने लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर पीऊ का, पढ़े सो पंडित होए। गरीबों के बीच में जीने वाले उस मोदी ने महंगाई को 2014 में 6.77, 2015 में 4.91, 2016 में 4.95, 2017 में 3.33, 2018 में 3.94, 2019 में 3.75 और 2021 में 5% कर दिया। यह कार्यकाल था माननीय मोदी जी का, पिछले 8 सालों का ऐतिहासिक कार्यकाल है। मैं अपने छात्र जीवन में सुनता था, जब जब कांग्रेस आई है कमर तोड़ महंगाई है। अब समझ में आता है, ये आंकड़े बताते हैं कि सच्चाई क्या है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, आज के दिन जो वर्तमान की महंगाई है, उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन, महंगाई 6.7, देश का एवरेज 7.1, उत्तर प्रदेश में 6.7%, उत्तराखंड में भाजपा का शासन, महंगाई की दर 6.04%, मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन थोड़ी सी ज्यादा है, महंगाई 7.16%, बिहार में भाजपा की सम्मिलित सरकार, महंगाई है 5.97%,
और गैर शासित भाजपा राज्यों में तेलंगाना 10.05, पुडुचेरी 10.09, राजस्थान 7.79, उड़ीसा 7.71, आंध्र प्रदेश 8.63, लक्षद्वीप 9.6, महाराष्ट्र अभी हमारी सरकार के पहले का यह आंकड़ा है 8.5। तो यानी देश में 7.1 महंगाई के बावजूद इस देश में जितने भाजपा शासित राज्य हैं सब में महंगाई बहुत कम है, और जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं सब में महंगाई बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं आंकड़ों से ही कहूंगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, दुनिया में विकास की दर 4.8%, अरब देश में 1.6%, पूर्वी एशिया और जापान में 5.5%, लैटिन अमेरिका और कैरेबिया में 5.8%, यूके में 7%, यूएसए में 5.5%, रूस में -2.8%, इटली में 7.3%। अध्यक्ष महोदय, भारत की विकास की दर 22 मार्च 2022 के वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे अधिक 7.9% की रिकॉर्ड है, और यह वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल रिपोर्ट है। और अंतिम बात, महंगाई इनको दिखती है, जनता को नहीं। कारण क्या है? वर्ल्ड बैंक मैंने बताया आपको, अब सुनिए, पढ़िए, थोड़ा बहुत सोच खोज लीजिए। मैंने बताया आपको वर्ल्ड बैंक, फिर भी आप न पढ़ना चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अध्यक्ष महोदय, आप चेयर को मोदी जी सरकार में आए थे, प्रति व्यक्ति आय 2014 में 86,000 रुपए थी, 2016 में बढ़कर के 94,000 हुई, 2017 में बढ़कर 104,000 हुई, 1,04,000, 2018 में बढ़कर के 1,14,000 हुई, 2019 में 1,26,000 हुई, 2020 में 1,35,000 हुई, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,50,000 है। इस कार्यकाल में हमारी आय पिछले एक साल के मुकाबले 18% बढ़ी है, और मोदी जी के कार्यकाल में 80% बढ़ी है। महंगाई 7% है, महंगाई में फूड का इन्फ्लेशन मान लेता हूं 14% है, आय की इनकम पिछले एक साल की 18.5% है। और यही कारण है हमारे देश के नागरिक इस बात को जानते हैं। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अनवरत इस बात के लिए काम करता है कि कैसे इस देश के गरीब नागरिक को उसकी गरीबी का एहसास न हो जाने दिया जाए। दुनिया आज मोदी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रही है। कौन सा वो तरीका है? कोरोना में इतनी समस्या आई, इस देश का एक भी गरीब निकल करके सड़क पर नहीं आया। खर्चे सिर्फ अनाज के नहीं होते, खर्चे मकान के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे बिजली के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे पढ़ाई के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे इलाज के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे अनाज के होते हैं जो मोदी जी ने इतना दिया कि लोग अपने घरों में रख नहीं पा रहे हैं। मैं इस पूरी बहस को एक शुद्ध राजनीतिक बहस करता हुआ कंडेम करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती गीता एलियस चंद्रप्रभा। गीता जी बोलिए। दीजिए आप बोलिए। धन्यवाद महोदय। महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं दो सप्ताह से मैं देख रही हूँ कि लगातार सदन विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार लगातार महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार थी। फिर भी 2 सप्ताह हुए सदन नहीं चलने दिया। महंगाई का रोना रोते इनको स्पष्ट दिखाई दे रहा कि सदन में कितना खर्चा होता है चलने को, उसके बाद भी चलने नहीं दिया।